on Sejal's introduction. So forgot to congratulate, or maybe again, country manager is a great position. Would love to have someday. Thank you. Anjan, please. Hello, hi all. I'm Thank Anjan. you. Okay. Yes, Anjan. Okay. Hi. Yeah, you can continue. Okay. Okay. So hi, I'm Anjan. I'm in small consultancy at firm right now. Yeah. Thank you. Mr. Hari, please. Yeah, hi everyone. I am Hari Kuti and I am currently working with National Chromatography as a product development manager taking care of Pan India business. Thank you. Saurabh Dayal, please introduce. Hi everyone, Saurabh. I run a company. We are India's leading budget eyewear brand. We have 60 plus outlets across 7 states in India. Thank you. Thank you. So my introduction, I always forget. So Vishal, and I'm the founder of Learning While Traveling. So we are mainly into startup focused tourism, and also we run a LWT Junior brand, which is a for school children, 3 to 12 years old, online school. Yeah, thank you. Okay, so let me get to the topic that we just a recap of the topic that we were discussing yesterday. So we were mainly discussing about education loan and how that can impact or good and bad side of the education loan, and the ending of the ending of the meeting was pretty much when we were talking about this education loan being a hurdle in people's life who are willing to start a startup. So we did hear some stories and things like that. थोड़ा सा इसको और एक बार recap कर लेते हैं, then we can move to housing loan and other things. So Anjan, what do you think about this education loan, especially since you have been doing MBA from you have done MBA from IIM? Most of the IIM people are actually under this burden of education loan, and most MBA probably, I guess, Premier Institute MBA. So somehow, you know, by the time they are getting rid of one loan, they are getting into another loan and things like that. What's your take, please? It is a wish. Most of the time after you finish of school, you aspire to be independent. So engineering or MBA, most of the students, I think, probably majority of the guys, they go for a education loan, or ये loan बड़ा आसानी से मिल भी जाता है. Now the thing is कि, I think it should probably work on some kind of a formula कि आपकी जो fees है ना, it should be a function of the average salary उस post की होती है placement के time पे. So by I'm not very aware जो fee के बारे में, that's a bit old, but it was you spend almost 4 to 5 years at an average probably loan set up to 6 time pay. The education I got was 7 years. For engineering, the loan that I got was for 5 years. Now those 3 साल में खत्म कर लिया. Then you go for your MBA. Then MBA you spend another 7 years of education loan का repayment करने जा रहे हो आप. तो by the time you pass out probably you're 24, and then 731 तक आप education loan खत्म करते हो. फिर आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, and then you aspire for a house. फिर आप housing loan के चक्कर में घुस जाते हो. So with all of these liabilities on the back of the head, it's actually tough to take a leap here. मतलब अगर मेरी when you start a company, it's never sure कि आपकी revenue कब से चालू होगी. You cannot take a salary. आपको cost देखना पड़ता है. And unforeseen things like this, COVID and all, you can never predict. So having a liability of a loan on your head, it's very difficult to take this kind of a leap. So yeah, I think somehow this entire structure of cost of education or all of it's somehow deterrent to take a leap in entrepreneurship unless you have some kind of financial backing. So that's my take. So what you're saying, in short, is this whole system is pretty much
going to produce only job seekers, not the job givers. Yeah. कहीं ना कहीं बी स्कूल में ये सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे रन करना है, and just to make them more of a business employee. Yeah, actually, you know, because I remember my induction in IIT, my induction in IIM was very different. At IIM, it was very placement oriented. Engineering के time पे it was little bit of knowledge oriented, but AV was mostly placement oriented because you know सबको पता है यार, मतलब आप इतनी heavy loan लेके आ रहे हो, placement is important. अगर placement छोड़कर कुछ IIT है ही नहीं, अगर वो नहीं होता then you are screwed on education on debt. So है somehow in these, even in all of these premium colleges of India, ये थोड़ा issue तो है. Probably there needs to be a solution out of it. Yeah, sure. I mean, placement oriented, people are there, and I guess especially, I mean, these schools are more of a redemption temple. भाई जो 4 साल मस्ती कर लिया इधर उधर बहुत टाइम वेस्ट किया, तो चलो 2 साल में थोड़ा रिडीम कर लेते हैं अपने आप को, पाप धो लेते हैं अपना, and maybe I will jump to, let's say, some kind of add a digit to my salary, annual salary, yeah, even monthly salary and things like that. ये एम के साथ ही I guess लोग जाते हैं. इस एम के साथ जब लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं their risk appetite is going to be a bit down, in terms of that, क्योंकि I think बहुत सारे MBA जो करते हैं लोग 1-2 साल का जॉब करके भी करते हैं, they get bored or they just want upgradation and things like that, so they are already getting used to that paycheck a bit, and maybe clearing their UG loan, और कोई 4 साल 5 साल का गैप ही लिया कि एक बार UG लोन क्लियर किया तो एक लोन क्लियर हो गया, अब दूसरा लोन लेते हैं, अब क्या लोन ले, अब दे हैव ऑप्शन हाउसिंग लोन ले, कार लोन ले, या फिर से एक और एजुकेशन लोन ले टू अपग्रेड देमसेल्फ, ताकि वो अगले 4-5 साल फिर से चुका सके उसको. तो द वे आई सी इट इज, हमने बहुत सारी अच्छी बातें की एजुकेशन लोन का कि इट्स गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लॉट ऑफ पीपल, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, but this is one flip side I see, from a very startup oriented person at least, or not even startup oriented अगर लेंगे, that risk appetite is pretty much gone. अगर जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि अगर ये placement नहीं होता है उस average salary में, so then even the loan repayment gets very very tricky, and especially for the people who go abroad, who are taking loans, including that dollar fee and things like that, then they cannot even return to India because Indian salaries won't pay their loan to that extent. What's your take on that? Then we can take comments further. So it's very true, यार. मतलब as I said, मतलब most colleges probably work on some kind of formula which is, I don't know, for a college where the average placement salary is, let's say 15 से 20 लाख है, तो the college fees would be around 20 से 25 लाख के आसपास होगी वो. So and the same applies for all of those colleges. मतलब I don't know, I'm just thinking of that, if you pick up the colleges abroad and in India, map their placement average salary versus the college fees, probably ऐसा ही होगा. So अगर आप abroad में MBA कर रहे हो, and there is no way you can survive on a domestic salary, so वो तो impossible है करना. So I think there is a bit of a structural issue here. Correct. And there is one more thing, as a sales strategy or as a marketing strategy, मैं बता रहा हूँ, ये institute का, what they will say is, what you spend here 2 years, or I mean your fees in 1 year, you will recover in 1 year. But यहाँ पे अगर finances की बात करें, थोड़ा सा जिसको भी, या I don't know कितना सारे अलग अलग एज के लोग हैं, बट मैं एक चीज तो दावे के साथ बोल सकता हूँ, that 20 लाख कमाना और 20 लाख बचाना are two different things. ठीक है, 20 लाख कमाने में 1 साल लगेगा, बट 20 लाख बचाने में शायद आपको 5 साल लग जाए ये ज्यादा भी लग जाए. Let's take comments from other people. Yes, Mr. Ravi, you have any comment? Let's take opening comments from all of you. 20 लाख कमाने में 1 साल लगे, बट 20 लाख बचाने में 4-5 साल तो लगेंगे एटलीस्ट. रवि, प्लीज. Are you there? Okay, maybe Abhishek Janta से पूछ लेते हैं. Abhishek, what do you think? Yes. Pajana in the sense?
मतलब मैं बोल रहा हूँ 20 लाख इस साल कमा लिया, लेट्स से सैलरी वाइज, 20 लाख बच जाएगा क्या उसमें से? नहीं नहीं कितना बचेगा टाइम लग कैसे, जाएगा बचाने क्योंकि में? जो जितना कमाता है उतना ज्यादा उसका एक खर्च भी होता है, एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होता है, तो बचाना तो मुश्किल है। मेरे से तो पैसा बच ही नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। मेरे पर पर्सनल एक्सपीरियंस से खर्च बहुत ज्यादा हो पाता है। ऐसा भी हम देखे हैं कि मान लीजिए कि जिस मंथ में आपका सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा हुआ उस मंथ में ज्यादा खर्च होता है, जिस मंथ में एक कम हुआ उस मंथ में एक कम होता है, तो खर्च करना इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। मुस्कान, you have a comment on this? Yes sir. So I think money earn करना easy है, as आपने बोला, but हाँ, how you spend the money, like मतलब तुम उसको earn करके कैसे spend करते हो वो ज्यादा मुश्किल है। मतलब तुम उसको कितना invest करते हो, कितने तुम्हारे expenses है, कितना तुम saving करते हो, वो ज्यादा difficult है as compared to earning the money. Sure. Nandan, you have a comment? Earning 20 lakhs versus saving 20 Yes, lakhs? sir. I want to ask you in English, like I don't know the bees lakh. 20 Yeah. lakhs. 20 lakhs. Okay. Can you repeat the question? So the question is earning 2 million versus saving 2 million. Earning 2 million versus Saving 2 million. So let's say you earn 2 million in a year, but can you okay. save 2 million in a year? Or how many years would you take to save 2 million? No. I would say if I'm having the 100 rupees, I would say I will spend for 10 rupees for my enjoyment and 70 for the investment only and 20 for the saving. I would rather prefer this type of percentages. I would not save the money. Saving is money is not a nice thing. The expenses, if the expenses are completed, we could transfer that money into an other type of investments, and we could rather increase the money. The flow of the money should be there. The main cause, the flow should be there, I think so. Sure. Atu sir, you have a comment, please. Mute your hand. Unmute, please. You are muted, sir. Sorry. Yeah, now. So I was in mute. So I agree with what Nandan just said. You need to have different categories, some for just running your expenses, then some for investment for longer term, and then also some for fun. So exact ratio might be different for different people, but everything is important. Life is unpredictable, short. So whether today is your last day, both are quotations में इस पे, कि live your life as if today is your last day. And I think not many people are able to do that, but if you can do that, that's really great. So live it as if this is your last day. So have all the fun. At the same time, you know that it might not be the last day. So then you also have to think about tomorrow. So also you start saving some money for tomorrow. And then, and lastly, given the lifespan and technological enhancements happening, so maybe instead of 70 or 80, you might have to live 1,000 years. And for that, the best investment in that would be your health and your knowledge, so that tomorrow in the future world, you'll always be able to create value and remain, I wouldn't say employable, but more of once you create value, and then you can demand the share from whoever you're creating value for. That could be in a job, or that could be as an entrepreneur. I recommend entrepreneurship as soon as possible. School से ही हो जाए तो better है, but अगर बाद में भी हो कोई बात नहीं, but जितनी जल्दी हो, try entrepreneurship. That's my recommendation. Obviously, safety factors and all those factors are there, but जितना जल्दी हो सके, पार्ट टाइम नहीं हो सकता है, फुल टाइम, तो पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के साथ पार्टनरशिप कीजिए, उनमें इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन 10% तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में डालिए ही, धीरे धीरे वो 10 करके कभी आप 100% भी हो सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि don't just focus on
your current, focus on future as well. Okay. Tejan, you have any comment on this? Kartikeya, you have? Yes, Tejan. Yes, sir. Sir, about 20 lakhs. So I guess saving is necessary. So question is actually 20 lakhs spending on education. Saving only can be done to a extent because we have. You are a bit breaking, I think. So sorry, Vishal, can I complete? I forgot, completely got off track. So this 20 yes, lakh, 20 lakh I wanted to comment. So when I was doing my MBA at IIM Ahmedabad, it was 2 lakh. It was a very good value for return for money. Internship से और उसके बाद first job में ही मैंने कुछ महीने के salary में I paid off the loan. Obviously, it's not longer the same job. So from 22 lakh it has gone to 20 lakh or more. So from that perspective, I think it's important कि अपने investment को थोड़ा ज़्यादा planning करना पड़ेगा कि अब it's no longer we're dealing in a small amount जो कि आपको तुरंत you can return. You have to, because the costs have gone up. India में 20 लाख 30 लाख, बाहर में 1-2 करोड़. So the costs have gone up and so have the saving to meet the cost. So maybe वो जो model है कि कुछ साल नौकरी कर once you do some job for few years and then you can get into those risky bets like MBA or MS or all that. Yes, Sajid, is your connection okay now? Sir, am I audible now? Yeah, now better. Okay, so I was trying to say that if a person is self-dependent, so obviously we can't save 100%. But though if we cut expenses, saving can be maintained. I mean, it depends on a person. Okay. Kartikeya, you are there? Yeah, hi. Yes. So the question is basically spending 20 lakhs on education, probably taking education loan, and then earning 20 lakhs in 1 year. Does it mean you can pay off the loan in 1 year, or you can recover the cost in 1 year? I mean, is that a valid point? Because saving 20 lakh and earning 20 lakh is not same. Well, of course it is. In general, of course, I do understand it's not at all the same. Education की बात, I think, is very subjective. थोड़ी अलग हो जाती है. But then जो पहले आप पूछ रहे थे, तो as far as savings and earnings are concerned, so I wouldn't say that if I'm able to earn a good amount of money, so I would get into savings, because I mean I would like to invest the money with of course a required knowledge. But yeah, आपने जो पूछा specifically, so if it's for the sake of education, I think I would like to go for it. There's no big harm in it. That's my take. Sure. Saurav, you want to say something? ओके, सो विशाल, आप शायद ये पूछ रहे हैं कि हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं, और इंसान नहीं मरा तो पैसा खराब हो गया. ये क्वेश्चन गलत है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं. नहीं मरे तो ROI नहीं निकलेगा, तो वो नहीं है. एजुकेशन को आप पैसे से नहीं तौल सकते हैं. एजुकेशन आपको ये नहीं है. मेरा क्वेश्चन एक और है कि लाइफ इंश्योरेंस आपको 1 करोड़ का लेना चाहिए जो सफिशिएंट है, या आपको 100 करोड़ का ले लेना चाहिए जो आपका लाइफस्टाइल भी नहीं है, बट आपने ले लिया है, आपको पता है कि कुछ नहीं मिलेगा शायद, और आप उसका प्रीमियम दिए जा रहे हो. ये क्वेश्चन है एक्चुअली. नहीं. सो अगेन मैं वही बोलना चाहूंगा कि हमें जो भी हम पैसा लगा रहे हैं एजुकेशन पे, आपने क्वेश्चन पूछा कि वो 1 साल में रिकवर होगा या नहीं. 1 साल में थोड़ी रिकवर होता है. तो आप ये बोलना चाह रहे हो 20 लाख का आपने MBA किया और आपका अगर 20 लाख का जॉब नहीं लगा, देन इट इज अ बैड इन्वेस्टमेंट. मेरा वो मानना नहीं है. मैं थोड़ा सा विजनरी मेरा थिंकिंग है, तो मैं स्टार्टिंग में ऐसे चलूंगा, लेकिन उसके बाद हॉकी स्टिक वाला मेरा फंडा है. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ
कुछ टाइम बाद ही होगा, और उसके लिए आई एम ऑल इन। तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या इन टर्म्स ऑफ बिजनेस या व्हाटएवर। सो मैं रिटर्न इमीडिएट एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ और अगर मेरे प्रोडक्ट में दम है, मुझ में दम है, तो रिटर्न मुझे 5 साल बाद 10 गुना ज्यादा मिल जाएगा एज कम्पेयर टू अगर मेरी 20 लाख की सैलरी लगती। तो मैं वो नहीं सोचता हूँ। मैं 45 डिग्री नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो और उसके बाद सीधे एक्सपोनेंशियल कर दो। ये मेरा थिंकिंग है। Mr. Ravi, have some comment, please. Okay, Vishal, have a comment like yes, it will have a difference. Earning 20,000 and 20 lakh and saving 20 lakh will have a different time spent. One. Second point, with respect to education, I just want to put up. See, loan we consider as an instrument for education, or like let me put this question in this way: we are preferring the education because of loan, or we are availing the loan because of education? Availing the loan because you want to get educated, I guess, but maybe inflated. So that is what, like every student hyper marketed education probably. So that is what, like see, the people who has the potentials to get it done from his packet, they go ahead, and those who do not have, they go for this instrument as a loan to finance their education. So one. Second, but when see this 20 lakh or 10 lakh of education fee which is there, basically these fees are there in the higher education, especially after graduations only. Up to graduations, you will not have much fee in terms of any colleges, school you talk about, any colleges. The fee would not be in that range. Only it's post-graduation courses where have larger fees. And this I'm talking in terms of Indian education. Again, a person who goes out for the MS and all, the course fee which is there, I am not aware of, or maybe I have very superficial knowledge in that. What fees, what colleges have in outside India. But in India, all this till graduations, all the fees fall under 7-8 lakh, max to max 8 lakh, or max to max 7 lakh. Even you do engineering from good colleges in India right now, not fees is beyond 7-8 lakh. But of course, after graduations, the fees goes up, especially the courses like MBA and all, the fees is beyond 14 lakh and 20 lakh kind of. But again, the percentage of people who enroll from graduations to post graduations is very less. There and see, divergence happens. Divergence happens after graduations. Many people, a chunk of people, a percentage of people who get into job, and very limited people who immediately go for the post graduation course. Out of job also, there are few people who continue with their education instead of graduations, and they are out of that lot. Only a chunk of people who decided to go for post graduation course. So these are a few permutations, combinations for the basis which is there. One. Second point, in all the cases, education loan is an instrument which, in my opinion, is to get your education. So you decide to go for the education, and then you find out the fee repayment how can be done, and loan is one of the instrument. So basically, focusing on the loan part for the educations to get on, I don't think there is a mental block in terms of getting education as what you want to do. Okay. Let me give. Yeah. Yes. Please continue. No, this is the point. Okay. So let me narrate a small story. Then I think you can understand the context better. So let's say a child is born, right? वो 18 साल का हुआ, सबसे पहला क्या किया उसने? Education loan लिया. Let's assume there was no loan on the family and all in the beginning. So 18 years was the first loan. Let's say UG loan, right? 5 lakh, 10 lakh, 10 lakh example. Next 4 years, that 10 lakh, whatever is, it's not that 10 lakh is taken at once. It's taken as a OD kind of, overdraft account, sanction amount. The amount is taken as and when required. A maximum 10 lakhs the person can take, which is consumed over 4 years, let's say, with all the studies expense.
Now after that he or she got placed, and then the repayment starts in 6 months, 1 year, and then maybe goes on for a few years. Then after the loan is cleared, let's say the guy was very brilliant, 2-3 years में उसने या 1 साल 2 साल में loan clear कर दिया. Then in that 2 years he also realized, he or she, the person also realizes that maybe he has to do MBA or any other higher studies, mostly the B school, let's say I'm talking, and then the person again writes CAT and things like that, and again takes another education loan. Now this time the education loan value is 25 lakhs, let's say, or 20 lakhs. Okay. And the person, let's say, clears the CAT exam, gets into B school. 2 साल का उसने किया, लोन से ही हो गया काम, थोड़ा मोड़ा अपना खर्चा लगा, ठीक है. अब क्या है कि अब नाउ अगेन ही गॉट अ जॉब ऑफ लेट्स से 20 लाख एन एनम. तो जैसे कि हमने बात किया, 20 lakhs is not recovered in 1 year, again takes 2-3 years to clear the loan. 2 years, let's say, very conservative, very high figure. I mean, like very savior kind of. I mean, say जो बहुत ज़्यादा बचाता है उसके frugal person, like 2 साल में फिर से clear कर दिया उसने. Now the thing is कि the person maybe got too used to this loan culture, that take the education loan, finish UG, take the PG loan again. I mean, finish this, and by the time they finish, they are at, let's say, 25 years of age, 25, 26 years, yeah, even 30 years at times. And then what happens is the person goes for, let's say, car loan, housing loan, iPhone loan, credit card, so few more loans kick in. So जैसे ही वो education loan खत्म हो रहा है, the person is pretty much stopping that loan का premium, or maybe more than that, into this housing, this. Now what has happened is now every month the person is earning, and then all these deductions are happening, and this way things pass and maybe enjoyable in the few years. ठीक है. तो उसके बाद क्या होगा कि let's say after few more years, because the person has done, let's say, UG from a good college, PG from a good college, after some years or maybe sooner or later, the person will realize that maybe this job was not for the person, but maybe he has to go for entrepreneurship, or he has to change jobs also, or lot of things. Maybe there is a layoff, like COVID happening, etc. But the trap is so big that now getting out of that trap is very much impossible. And now the person has become more of a Abhimanyu, less of a Arjun. चक्रव्यूह में फंस गया, अब मर के ही निकलेगा, वो अर्जुन जैसा तोड़ नहीं सकता चक्रव्यूह. Okay, so this is the story. Let's hear from people. Anjan, what do you think about this? No, as I was saying before, it is a bit of a vicious trap जो है, मतलब if we just take a normal distribution of the entire batch, so most of the students इसी trap में फंसेंगे. So as I said before, it's something that makes a person think twice before taking a leap of faith. But having listened to other people's view, but there are always ways to serious yourself या अपने financial obligation जो उसको आप हमेशा, you can find ways to somehow pay off earlier or find some other support system. बहुत सारे लोग 2-3 साल जॉब करने के बाद बी स्कूल जाते हैं, so they use their savings in here, and there can be multiple ways. But I think if you put it in a normal curve, majority of the students will fall in this trap, and that's for the normal distribution. 66% are in this trap. Okay, let's hear from others. Muskan, what do you think? Do you think 66% will fall in this trap only, or there will be some Arjun in that? Sir, it's very difficult to answer for me right now. But yeah, I think most of the person will fall in trap. Mm-hmm. Okay.
I think the one who knows how to out of it, only they can. I think the percentage will be very less. I think 5 to 10%. Yeah, sure. Abhishek, did you hear the whole story? Abhishek, are you there? Or maybe you can hear from Ravi. What do you think, Ravi, about this story of a common man? It's very subjective in my opinion, because I have gone through. See, why I'm telling these things? It's because of I have gone through the same phase which is there. Okay, I have done my MBA with loan amounts and I have cleared it within 3.5 years. And in sales, there is a particular term used. Every month you have a target, and the target would be anonymous. It will not be like from your side. It will be anonymous to you. Company today decided to give a target of 20 lakh. You have to achieve it. You do it how you want to do it. You go to the market, you design your strategy, and you achieve it. So it is same. Let's say I will put another analogy. A person who wants to get into entrepreneurship, now immediately or maybe down the line 1 year or 2 years, he decided for the investment. Investment itself is a loan too for the company. He also start like it is the same way. It comes with its own terms, conditions, everything. But people do play with it, and then they take it as per like their challenge, and then they derive the business out of it. In the same way, see what the other side of it. Let's say I am not opting for loan, but I want to do MBA or I want to do the post-graduation course. What is the solutions at that point of time I do have? Mm-hmm. Yeah. So the question is, I mean, is this a trap like the story I told? Majority of the people are going to fall on this trap. I mean, do you agree to this? I mean, obviously some people can. That is what I'm saying. When you talk about the students' mindset, that is what you need to prepare your students for the swimming. There would be a water, right? And you need to learn and swim that river or that water. That is the best way to do it, rather than thinking of it as a trap or something, which even it will demoralize you, or maybe it will demean your thinking in terms of financial steps or financial decisions. Okay. Yes, Saurav, what do you think about this story? विशाल, सॉरी मैं बहुत अच्छे से स्टोरी सुना नहीं हूँ, बट मुझे शायद जो बाकी पार्टिसिपेंट्स बोले तो शायद आर यू आस्किंग कि लोन लेना या लोन बेचना इज अ ट्रैप? इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क? What I'm saying कि people get into one loan, then another loan, then another loan, then another loan. Ultimately, they get into a loan trap till, I don't know, maybe 40-50 years at least. By the time it's too late to get out of it, they become like Abhimanyu, not Arjun. Oh, getting out of this चक्रव्यूह of loan. क्योंकि आप जैसे कमाने लगेंगे ना, आपके पास क्रेडिट कार्ड वाले आ जाएंगे, आपके पास बहुत सारे फाइनेंसर आ जाएंगे, प्लीज ले लो, धीरे धीरे दे देना, ये है वो है, and lot of people go in the flow. So this is what I'm asking. This let's say majority of the people are falling in this trap actually. So do you agree to this? And then later what we can discuss is how we can really beat this trap. What is the silver bullet out of it? मेरा इसमें मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, क्योंकि पर्सनली मैंने लाइफ में कभी लोन लिया नहीं है, बट मैं कंपनी चला रहा हूँ और मैंने लोन नहीं लिया, मैंने फंड रेज किया हुआ है, तो मैंने शेयर्स दिए, स्टेक डाइल्यूट किया हुआ है, तो इट इज अ चॉइस व्हिच अ इंडिविजुअल हैज टू मेक कि वो आउटकम क्या चाहता है. जैसे मेरा शुरू से विजन था कि मुझे इंडिया का नंबर 1 प्लेयर बनना है, तो मैं उसे अपने पैसे से नहीं बना सकता हूँ. अगर मेरा विजन होता कि मुझे 5 दुकानें खोलनी है, तो मैं अपने पैसे से शायद बना लेता और मैं 5 दुकानें सक्सेसफुली चला रहा होता. पर मुझे अगर 5000 दुकानें करनी है, तो आई कैन नॉट डू इट विद माय ओन मनी. सो उसके लिए मुझे लोन लेना होगा. वेदर मैं उसको लोन या फंड रेज करना पड़ेगा. मैं उसको जस्टिस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ये मैं नहीं सोच रहा हूँ. ऑब्वियसली जब मैंने प्लान बनाया तो मैंने एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट डाल के एक प्लान बनाया है, जिससे मैं वो अपने टारगेट्स जो मैंने सोचे हैं उसे मैं अचीव करूंगा. बट यू नेवर नो होगा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट देयर इज अ प्रॉपर प्लान इन प्लेस. बिना सोचे समझे आई हैव नॉट डन द फंड रेज एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट.
मैंने फंड रेज किया हुआ है, तो आई एम अचीविंग माय टारगेट्स डिस्पाइट कोविड आए या ये आए या वो आए, उससे मतलब नहीं है। मुझे तो परफॉर्म करना है, क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरे को नेक्स्ट फंड रेज नहीं आएगा, नेक्स्ट फंड रेज नहीं आएगा तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं इतना ज्यादा फैला चुका हूँ कि अब मैं अपने पैसे से तो चला नहीं सकता हूँ। So I don't know if I answered your question or So not, but basically, Saurav, indirectly, I think पहला sentence में you answered actually that you have not taken a loan. So question to you is like a counter question rather, कि loan 7 साल you did job, right? You said you did 7 years you were doing job. Why you never thought about taking any loan? I mean, is it because of the financial independence that you had, or you just treated loan as a bad thing कि लोन नहीं लेना चाहिए, जहां तक हो सके अवॉइड करो, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ, एक्सेट्रा? या प्लीज। ऐसा नहीं था कि मैंने अपने पापा से मेरे को कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऐसा नहीं था, मैं बहुत ज्यादा कमाता था, पर मैंने लोन नहीं लिया क्योंकि मैं थोड़ा मैथ्स वाला बंदा हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा लॉस होगा। तो मैंने क्या किया कि जब मुझे गाड़ी लेना था तो भी मैंने किसी तरह अपने पैसे से लिया, कहीं से बोरो किया था, लेकिन रीपे कर दिया। उसके बाद जब मुझे घर लेना था तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान था, तो मैंने पूरा पेमेंट, मुझे पता था मेरी सैलरी इतनी है, और उस टाइम पे मतलब बिल्कुल हैंड टू माउथ था। मान लो कि मैं 1 लाख कमाता था और मुझे 1 लाख का ही हर मंथ देना था, हर सेकंड मंथ करीबन 1 लाख का आता था, और मैं नियर अबाउट उतना ही कमाता था उस समय, तो मैं सेव कर लेता था। तो मेरे पास ऑप्शन था, मैंने HDFC का लोन में वो सारे फॉर्म्स भर दिए थे, लेकिन मैंने साइन नहीं किया था। मैंने सोचा था कि अगर मैं खुद ही पे कर दूं तो मैं एक्स्ट्रा क्यों 15-20 पर जितना भी परसेंटेज होता है मैं क्यों दूं, वो मेरे लिए स्ट्रेट अवे लॉस है। मैं कोई अकाउंट्स का बंदा नहीं हूं कि मुझे उसे कैसे इनकम टैक्स बचा लूं और वो सब कर लूं, इतना मुझे नॉलेज नहीं था। तो मैंने बस सोचा कि यार 5 लाख ऊपर से क्यों देना है, तो मैंने किसी तरह सेविंग्स करके अपना सारा क्लियर करा दिया। तो ये लॉजिक था मेरा। तो बेसिकली सिंपल कैलकुलेशन किया कि लोन के कैलकुलेशन में पढ़ना ही मुझे लगा लोन लेना लॉस है, तो मैं लॉस क्यों करूंगा। लोन लेना लॉस है, एक सिंपल कैलकुलेशन, एक लाइन में लोन लेना लॉस है। बड़े बूढ़ों ने सिखाया है कि लोन नहीं लेना चाहिए, या व्हेन यू आर फॉलोइंग सम लेट्स से सेइंग फ्रॉम ओल्ड डेज व्हाटएवर, भाई बेटा कुछ भी हो जाए लोन ना लेना। यस अतुल सर प्लीज। मेरा कहना है मेरा कि अपने से बिजनेस पैसा लगा के बिजनेस करना, छोटा मोटा दुकान खोलना है या क्या, सौरभ जी का तो बड़ा चश्मे के बिजनेस में एम्पायर है, 80 तो छोटी बात नहीं होती है। लेकिन किसी बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने कभी बोला था, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, कि कोई भी बड़ा बिजनेस जो भी आज तक दुनिया में हुआ है वो अपने पैसे से किसी ने नहीं किया है, ज्यादातर दूसरों के पैसे से बिजनेस। एंटरप्रेन्योर जब हम किसी को अपना बिजनेस आइडिया नहीं बेच सकते हैं और लोग पैसा नहीं ले सकते हैं, तो मेरा आइडिया में दम नहीं है। स्टार्टिंग में ठीक है, मैंने आइडिया को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए अपना पैसा लगाया, जो बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग किया, सब कुछ किया, बट उसके बाद मैं अपने आइडिया को अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को, या जो भी मेरे नेटवर्क में लोग हैं, अलुमनाई को, उनको अगर अपना आइडिया मैं नहीं बेच पा रहा हूँ, वो लोग पैसा नहीं लगा रहे मुझ में, इवन फैमिली मेंबर्स भी नहीं लगा रहे, तो मतलब कि मेरे आइडिया में लोगों का विश्वास नहीं है, मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाया हूँ। तो मेरा मानना है कि जितने बड़े बड़े जितने दुनिया के बिजनेसमैन हैं, उन सब लोगों ने उन लोगों ने पैसा लिया है, और बहुत सारा पैसा अवेलेबल है मार्केट में। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स होती हैं हर स्टेट में, हर कंट्री में गवर्नमेंट की बहुत सारी फंडिंग अवेलेबल होती है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए होती है। बहुत सारे लोगों का ये भी होता है, इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चांसेस है कि डूब जाएगा। वेंचर कैपिटलिस्ट तो वही होता ही है कि उनको पता है कि 100 में 90 डूब जाएगा, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर को पता है कि बहुत ज्यादा चांस है कि डूब जाएगा, बट फिर भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आइडिया से ज्यादा टीम में भरोसा है, उनको सौरभ दयाल पे भरोसा है, उनको विशाल कुमार पे भरोसा है, उनको अतुल कुमार पे भरोसा है, उनको सेजल पे भरोसा, उस टीम पे भरोसा है। तो लोगों ने अपना पैसा भी लगाते हैं, और पैसा लगाते हैं तो एक और फायदा होता है, पैसा लगाने के बाद वो केवल पैसा नहीं देते, पैसा देने के बाद वो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो आपके पार्टनर बन गए, तो वो आपके बिजनेस को, आपके को प्रमोटर को, फाउंडर के रूप में वो सबको रेफर करने लगे कि वो मैंने लगाया है पैसा ये सौरभ का बिजनेस में, इतना अच्छा उसका चश्मा का बिजनेस है, आप लगाना चाहते हैं क्या? तो एंटरप्रेन्योर्स जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी पैसे वाले लोग होते हैं, एक कम्युनिटी में होते हैं, सब एक दूसरे को बातचीत करते हैं, रेफर करते हैं, हाँ मैंने तो वहां लगाया है, मैंने
1 करोड़ लगाया है तो चलो यार मैं भी 2 करोड़ लगा ही देता हूँ। और ये 100 करोड़ वाले 1 करोड़ 2 करोड़, बट कोई अगर 1000 रुपए का भी कोई मान लीजिए कि कम छोटा बिजनेस है, मान लीजिए कि मैं लोकल बिजनेस है किसी ने किया है, तो उसकी बात हो सकता है कि 1000 रुपए का ही इन्वेस्टर काफी बड़ा है, तो हो सकता है कि उसके परिवार वाले पड़ोसी वाले वो लगा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लाख काफी है और कुछ लोगों के लिए 100 करोड़ भी कम ही लगता है। क्या अपने क्या नाम है सॉफ्ट बैंक वाले भैया का, तो जब वो आ गए तो बहुत सारे और भी लोग आ गए। तो ये स्टार्टअप हो या इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कभी कभी क्राउड मेंटालिटी करता है कि सक्सेस के पीछे सब भागते हैं, तो एक बड़े आदमी लगा दे दूसरे आदमी को भी लाएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा भी आएगा, तो वो एक चेन स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पैसा दूसरों से लेना चाहिए, लेकिन हाँ कंट्रोल बहुत बड़ा इशू है कि हु हैज कंट्रोल। आप एंटरप्रेन्योर हो और जहां आपने पैसा लिया तो थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो जो भी आपका एंजल इन्वेस्टर है या फैमिली वाला है या कोई वेंचर कैपिटल से पैसा उसने दिया, तो साथ में उसका भी कुछ आपके बिजनेस में शेयर रहेगा। तो ये डिलेमा हमेशा एंटरप्रेन्योर्स के पास होता है, सोचना पड़ता है। जो यहाँ हम लोग एजुकेशन लोन की बात करें तो फैमिली वाले लोगों ने पैसा लगाया है तो उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी, बेटा पैसा मैंने तुम्हारी पढ़ाई स्पॉन्सर की है तो तुमको ये करना पड़ेगा। और गलत भी नहीं है क्योंकि देयर स्टेक होल्डर, उनका बनता है, उनका राइट बनता है कि वो आपको गाइड करें और आपको ये भी करें कि ये नहीं बाबू अभी तुम्हारा चल नहीं रहा बिजनेस, बंद करो कुछ और करो या नौकरी करो कुछ और करो। तो जो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने आपको पैसा लगाया है, टाइम दिया है और भी हेल्प किया है, तो उनका आपको बात सुनना चाहिए और पड़ता है, आई थिंक स्टूडेंट्स को भी और एंटरप्रेन्योर्स को भी। श्योर। तो इस स्टोरी पे आते हैं वापस से कि बिकॉज lot of people lives are all spent under some or the other loan. It's like I was saying कि 18 साल से 40 साल 45 साल या 50 साल तक लोग लोन ही भरते रह जाते हैं, ये कभी ये लोन कभी वो लोन कभी वो लोन। कहीं ना कहीं people get habituated to this loan, that EMI scheme and all. Now the question is actually इसको I mean कहने का मतलब है कि इसको अच्छे तरीके से स्मार्टली यूज किया जा सकता है पूरा लोन स्कीम को, और एक है कि ऐसा आप यूज करो कि पूरा खत्म ही हो जाए। तो एक तरीका है कि जैसे सौरभ ने बोला कि चलो मतलब इफ आई कैन मैनेज इससे लेट्स स्टे अवे फ्रॉम दिस हेडेक, ये लोन मैनेजमेंट में घुसना ही नहीं है कि ये ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी इस टाइप से, ठीक है। बट अब दूसरा कोई है जिसने कहीं ना कहीं ये डेप्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया है, या he or she learns this, and this learning probably has to start at a very early stage, that how to really manage your finance if you are, especially if you are taking debt loans, जो भी एजुकेशन लोन ले रहे हैं, उसके बाद आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं। So what I think is, and others can add, there is this cash flow management that people can do always. एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेरे किसी दोस्त के पास 5 क्रेडिट कार्ड था या 10 क्रेडिट था रादर। उसने क्या किया कि हर क्रेडिट कार्ड से अलग अलग टाइम पे लोन लिया और अलग अलग इंटरेस्ट पे लोन लिया, एंड ही वाज जस्ट मूविंग अराउंड द मनी दिस दैट, एंड दैट्स हाउ ही क्रिएटेड अ कॉर्पस ऑफ फंड व्हिच ही कुड इन्वेस्ट इन। यस रवि प्लीज। Vishal, this was exactly my point, why I was fighting for this point. Okay, right. Please. Now you are the Arjun. Loan is not bad, especially see my point up to now was only restricted to this education loan, okay, which I always be in favor, but at the same time there are few other loans are there, credit card loans and then housing loans. I am totally against the housing loans, totally against. That is the kind of blunder people do when they look at their financials. Most of the people who are there in job, financial housing loan is a big blunder for anybody who do it. Okay, I'll give the iterations in later because that will take I think just 10-15 minutes time, but I will concentrate on this credit card part, okay, and the loan equity. See, loan is basically how you can manage your financials, especially the cash flow. You can make your cash flow very regularly with the help of credit card or with the help of a small amount of loans. Let's say very practical,
how I take care of my home, I'll tell you the example which is there. Now, let's say I decided to buy a fridge of 75,000. If I'm going to buy it on cash, I have to give for this month 75,000 to my overall expenses for this month. Now we'll go and calculate which company is giving what percentage of loan. Let's say for 1 year, if I'm paying 8,000 or 9,000 rupees on, with this like 75, I'm with loan I'm paying 80,000 or 81,000, 6,000 rupees for a year or year and a half. Generally 9 months or 12 months with credit card it comes in. Okay, which is good enough to take care of my monthly cash flow. I'm only paying 6,000 or 7,000 rupees for a month, which is good enough sitting into my cash flow of the month, and I'm availing the product from the day one. In case of bike, as Saurav said, okay, bike generally costs 95,000 or 85,000, but remember, by availing that facility, you are using the product from the day one. If you are paying upfront, already you are losing out the power of money which you'll have on a future. Second point, for business, credit card is the best to manage the cash flow. How? I'll tell you. Now, today I brought a material of 2 lakh from vendor A. I have 5 credit cards with me on the same priority of 2 lakh each, which has a capacity of 2 lakh each. Now, at present, I do not have fund to pay him. What I will do, on 30th day, I'll swipe my credit card, number 1. Now, still if I am finding difficult to pay it upfront, I will do it with second credit card in second month. So my payment terms automatically increasing from 30 days to 60 days, 60 days to 90 days. So I am leveraging my time of money just by using, not paying anything. I'm not using, just I'm using this instrument to leverage my time and managing my cash flow. Hope I'm making input to the points which you asked. Yeah. So let me explain what Ravi was saying regarding this credit card management and how you can use it, for your favor rather than your loss. So credit card का एक rule होता है कि आपका monthly statement is generated on a fixed day usually, and your due date is also on a fixed day. Okay, so if you spend something today, let's say, and then let's say after a month or 20 days there is a statement generated, and then you have, let's say, another month to or some month या जो भी आधा month whatever to pay that amount. तो इससे क्या हुआ कि you actually managed to get interest free loan for, let's say, 40 to 45 days, or maybe in certain cases up to 60 days. ठीक है. Now, if you have 5 credit cards, what you can do? You can do a lot of things. You can actually do cash flow up to like 8 months to 1 year almost, just by playing smart. तो क्रेडिट कार्ड में आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, आपका ड्यू डेट मिस नहीं होना चाहिए. अगर ड्यू डेट मिस हो गया तो क्रेडिट कार्ड आपको खून चूस लेगा. बिग प्रॉब्लम. हाँ. तो and the way, I mean, the psychology on which credit card works is basically they want people to default. आप कैसे भी करके ये ड्यू डेट मिस कर दो, या उस दिन आप पूरा पेमेंट ना करके जस्ट मिनिमम पेमेंट कर दो, so that they can charge you on the rest of the outstanding amount. So these are the two sources by which they make money from the consumer side, and from the merchant side, obviously they charge 2-3% like a gateway kind of thing to be. That's maybe a bit of a chiller for them, but still that also adds to the cash flow. So ये दो तीन चीजें हैं. Obviously they have to pay their employees and all. So this is why you'll see credit card companies are after people who are on regular paycheck. जितने भी salaried लोग हैं उनके पीछे क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी एकदम पीछे पड़ जाएगी. कहीं भी आप मॉल में जाएंगे, ये जाएंगे, वहां जाएंगे, they will say okay ले लो सर, ये ले लो, और जितना ज्यादा लिमिट दे सकते हैं उतना ज्यादा लिमिट देंगे आपको, because the chance of defaulting is higher with that high amount, right? अगर आपको 10 लाख का क्रेडिट कार्ड दे दिया
तो there is a fair chance that जैसा अभी हमने बात किया, majority people which might fall in the indisciplined category, they might and out of that, let's say, I don't know, 5%, 1% will do this. Yes, Ravi, please. I think. Yeah, one more point I missed out regarding the credit card. See, whenever you are swiping credit card, please do not do it for gold or like this purchases. Your amount will not be converted into EMI for gold purchase. नहीं, I think ये तो depend करता है. I think कौन सा credit card. Like this is a financial instruments. One, people are not like financially literate, not in terms of the terms and conditions, which make them prey in terms of getting into it or become a burden to them if they do not understand the instrument itself. Correct. Hey, sure. I mean, so I mean, ये पूरे discussion का agenda as in like the main takeaway is basically giving financial literacy to people, even youngsters, probably youngsters, जो अभी इस trap में फंसेंगे शायद जाके आगे. तो पहले से ही उनको बताना जरूरी है कि please ना फंसना. Yes, Naman, you have some comment, please. Sir, I have a credit card which has been issued to me on the basis of my FD, which is my fixed deposit. Okay, so there is a term known as the minimum amount due. Okay, so what was that? I was very much confused. Okay, suppose I purchased a 10,000 rupees. Okay, and there shows me the minimum amount due is 10,000. 10,500 rupees, something like that. Okay, and when I paid, actually I think the minimum amount due, what I heard from my from my parents is that the minimum amount due is just like that pay the interest but don't pay the capital. So I was very much confused about what is that minimum amount due, which I see every time when I log in. So can you explain somebody? Ravi, do you want to comment? Yes. So see, it's a very confusing terms which credit card people use it. Okay, minimum amount due means it will be combination of your interest amount, which will have 80% of weightage, 20% of principal amount. But this amount do not guarantee you that the amount you draw. Okay, for the amount you swipe, every charges which is applicable will be applicable to it. Late fees will be applicable. The interest will be applicable. Again, basis on your default, what is the charges which is going to apply, that will be applicable. Only if you pay minimum due amount for next billing cycle, your credit card will not be on hold. Okay. You got my point? Yeah, I got your point. So that is in credit card, this is the thumb rule. You know your billing cycle. Before billing cycle, you convert your amounts into EMI if you want to maintain your cash flow. Okay. If you fail to do it, it will come very heavy. See, in a month you will able to pay. I'll say if you calculate over a year, it would be more than 34 to 35%. In a month, it would be more than 7%, 6 to 7%, which will be equivalent to your PD. I just wanted to add to Ravi's point कि क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का जो लोन है ना, उसके चलते पूरी दुनिया परेशान है, बर्बाद है. मेक श्योर कि आप चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड का लोन लेगा, तो जो रवि जी ने बताया कि आप EMI उसका आपके इंटरेस्ट चुकाने में ज्यादातर पैसा लग जाता है. और मोस्ट क्रेडिट कार्ड दे डोंट वांट यू टू पे द होल अमाउंट. उनको तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट उनके इंटरेस्ट है. तो द मोर डेट यू हैव, द बेटर इट इज फॉर देम, क्योंकि उनका इंटरेस्ट आते रहेगा. तो किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए पहला कोशिश ये होना चाहिए कि कैसे मैं अपने प्रिंसिपल को पे करूं. जो मैंने लोन लिया है, जो क्रेडिट लिया है, उसको कैसे जितना जल्दी पे कर सकूं. क्योंकि आप जो पैसा पे करते हो, जो EMI सर्विस ने बोला, तो आपके प्रिंसिपल पे कोई डेंट नहीं लगाता, आपका इंटरेस्ट ही पेते जाता है और आपका बढ़ते जाता है. तो आपको अपने प्रिंसिपल पेमेंट पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे स्टूडेंट लोन का हो, चाहे कार के लोन का हो. प्रिंसिपल को पे करने पे थोड़ा ध्यान दीजिए. इंटरेस्ट तो फॉरएवर चीज है, कभी खत्म नहीं होता. इसलिए प्रिंसिपल को जैसे खत्म कीजिएगा, तो आपका फिर अगला इंटरेस्ट भी कम होते जाएगा. वो विशेष जो लूप होता है, बहुत लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होने के चलते नहीं पता होता है. होपफुली रवि सर यू एग्री विद मी. यस सर, करेक्ट सर. या तो नमन, तुम्हारे क्वेश्चन का एक सिंपल एक लाइन में मैं आंसर देता हूँ. मिनिमम अमाउंट ड्यू इज बेसिकली
the interest जो लगना था वहाँ पे plus some other charges, let's say उतना minimum वो चाहते हैं दे दो, but नहीं actually वो तो चाहते हैं कि तुम default करो but तुम second best है कि minimum amount दो, third best है कि पूरे का पूरा clear कर दो, ठीक है. तो अब फाइनेंशियल लिटरेसी का स्टेजेस है ऑब्वियसली, और आई मीन रिसोर्सेज भी है थोड़ा सा. सो पीपल हु आर the literate ones will pretty much pay the whole outstanding amount, or even like what Ravi said, just before the amount statement and all comes up, they just convert it to EMI so that they pay lower interest. तो अब स्मार्टली आपको खेलना है कि आपको बेसिकली कम से कम फाइन देना है, कम से कम इंटरेस्ट देना है, एंड इसके लिए the credit card can be used in the best of the best way to really manage the cash flow. तो cash flow का एक simple understanding ये लो कि आज के डेट में आपके पास कितना कैश है, या how much cash at hand you have to work with, ठीक है. So जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि ये पूरा जो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, this can be actually used even in our favor, but need discipline and a bit of knowledge and things like that. तो अब वही है कि इसलिए कि लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है. इवन आई थिंक सम कंपनीज गिव इट एज अ डिफॉल्ट because probably the credit card companies have some tie-up that please give it to people. Okay, let's hear from other people. Anjan, you have a comment on this credit card cash flow, etc. What's your take? Are you there? Maybe Nandan, what do you think about credit card as such? Nandan, you're not there. Saurabh, do you have credit card? Abhi? Yeah, you don't have. उसमें भी नहीं है. नहीं, क्रेडिट कार्ड वाज मेरा तुरुप का एक का जब मैं स्टार्टअप शुरू कर रहा था. अच्छा, ओके. तो क्रेडिट कार्ड ने मुझे बहुत हेल्प किया है. हम लोग तुमने झूठ बोला कि लोन लिया नहीं कभी. इनडायरेक्ट लिया. ये इंटरेस्ट फ्री लोन है ना, क्योंकि मैं ड्यू डेट से पहले दे देता था. लेकिन हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, क्रेडिट कार्ड हमने काफी यूज किया है, और हम लोग वो जो मिनिमम ड्यू अमाउंट वाला जो सवाल पूछा था, हम वही करते थे बिकॉज हम लोग पेमेंट नहीं कर पाते. तो हमारा मॉडल बहुत सिंपल सा था. हमें दुकान बनाना होता था और उतने पैसे शायद, या स्टॉक खरीदना होता था, पैसे होते नहीं थे, तो हम लोग स्टॉक खरीदते थे क्रेडिट कार्ड से, और फिर जब वो बिकता था तब रीपेमेंट करते थे. तो हमने आई थिंक स्टार्टिंग के 1.5 साल हमने बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज किया, और इफेक्टिवली यूज किया. हमने कभी वी वर नेवर एनी डिफॉल्टर्स, बहुत एथिकली यूज किया. और एक ही क्रेडिट कार्ड या 2 क्रेडिट कार्ड रखा था मैंने, और हम वो उससे सारे खर्चे निकालते थे. वो ऐसे 10-10 क्रेडिट कार्ड लेकर और बुद्धू बनाने वाला सिस्टम नहीं करते थे, लेकिन वी यूज्ड इट वेरी इफेक्टिवली इन रनिंग दिस. और मैं पर्सनल लेवल पे आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि मेरा पर्सनली आई होल्ड 3-4 क्रेडिट कार्ड्स, और मैं उनको बहुत जुडिशियसली यूज करता हूँ. चाहे अगर कोई मुझे फ्लाइट टिकट करना हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल करना हो, चाहे मेरे को कुछ भी बड़ा हाई वैल्यू वाला कुछ खरीदना हो, तो आई यूज क्रेडिट कार्ड्स. Yes, Nandan, please. Yeah, regarding the credit cards, I'm sorry I didn't use the credit cards, because when they call me regarding the credit cards, I used to say I'm not doing any job. They used to cut the call. I didn't kept my mind on the credit cards, regarding the credit cards or anything about that. If I'm having any, yeah, as Saurabh sir told, if I'm having any air tickets or anything, my brother would do from his credit cards. So the reason I'm listening to all of them, like what was the credit card and all those things. Credit card का एक और यूज होता है. If you have to book hotels and all, sometimes it's mandatory to be paid. So Anjan is back. Yeah. So what do you think, Anjan, about credit card management? Good thing, bad thing? Credit card लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, for credit card, I'm more of a personal user. मैंने अभी तक अपने professional कभी यूज तो किया नहीं है, but from a personal point, I think I use it more from a convenience point of view. Convenience plus value added thing. I've been using 15
16 साल तो हो गए अभी यूज करते हुए, बट यार मतलब पिछले 4-5 सालों में मतलब आई यूज एक जेट का कार्ड यूज करता था, तो जेट में मुझे काफी बेनिफिट हो जाते थे। फिर जेट बंद हो गया था, आजकल मैं इंडियन ऑयल के यूज करता हूँ, उसी के पेट्रोल खाता हूँ। तो मतलब दोज वैल्यू एडेड थिंग्स आर ऑब्वियसली देयर, बट मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है कि इट्स अ कन्वीनियंस पार्ट ऑफ इट। इट्स आपको जस्ट वन स्वाइप। आई एम अ फैन ऑफ क्रेडिट कार्ड, बट वही है कि आपको जुडिशली यूज करना है, आप टाइम पे पेमेंट करते रहो, सो दैट यू डोंट फॉल इन दैट trap or any kind of thing. But I think it's a great tool. मतलब it's a small plastic card जो आपके सारे expenses को आराम से handle करता है. But on the flip side, it can become a major issue अगर आपको पता नहीं है कि आपकी 40 दिन बाद आपकी cash flow situation क्या होने वाली है, तो it can always become a trap. तो क्वेश्चन यही है कि अगर सब लोग इसको जुडिशियसली यूज कर लेगा तो क्रेडिट कार्ड कंपनी बंद हो जाएगा क्या है? What do you think, Arjun? If everybody becomes judicious, will No these clue. companies The math go behind bust? the math behind credit cards, I know, but मुझे आई एम नॉट अप टू डेट ऑन द स्टैटिस्टिक्स से कितने लोग डिफॉल्ट करते हैं, बिकॉज पेनल्टीज ह्यूज है। एक दो बार गलती से मेरे मिस हो गए हैं, कभी 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर है तो 1 डिजिट आगे पीछे हो जाता है, गलती से टाइपो में भी हो जाता है, तो मुझे बाद में पता है इसकी वजह से मुझे इतना सारा पेनल्टी पड़ गया, इतना सारा इंटरेस्ट लग गया। मतलब कभी कभी रिकवर होता है, कोई नहीं होता है, बट आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का होता है। बट आई थिंक इट कुड बी अ ग्रेट रेवेन्यू फॉर द बैंक, दैट आई एम श्योर। आई थिंक दैट्स क्योंकि यार 30 दिन का एडिशनल कैश फ्लो कौन देता है आपको? लोन क्यों देगा 30 दिन के लिए? तो देयर मस्ट बी अ मैप फॉर द रिटर्न ऑफ इट। कैसीनो वाला कुछ तो रूल होगा यहाँ भी। मतलब एक लार्ज इनफ सैंपल साइज पे अगर आप काम करो तो प्रोबेबली बैंक माइट बी विनिंग आउट ऑफ इट। इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक्चुअली चेक करना चाहिए ये। श्योर, यस सर प्लीज। आपने सवाल पूछा था ना विशाल कि क्रेडिट कार्ड में अगर कोई डिफॉल्ट ही नहीं करेगा तो क्रेडिट कार्ड कंपनी कमाएगी कैसे? तो पहले हम कमाएगी कैसे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब कमाएगी फिर भी, बट विल इट गो बस्ट? आई मीन उतना कमा पाएगी क्या, ये क्वेश्चन है। तो पहले हमें समझना है कि क्रेडिट कार्ड देता कौन है। क्रेडिट कार्ड देता है बैंक। बैंक का ये प्रोडक्ट है। तो बैंक के कमाने के बहुत सारे जरिए हैं। इट इज लाइक पेटीएम है। पेटीएम कैसे कमाएगी? पेटीएम रिचार्ज से भी कमाती है, रिचार्ज में फिर कैशबैक देती है, फिर कैशबैक से आप बुक माई शो में जाते हैं, बुक माई शो से बुक करते हैं, फिर उसमें कैशबैक आता है, और फिर पेटीएम मार्केट प्लेस में भी आप यूज करते हैं। आपको एक कपड़ा खरीदना है उसके लिए भी आप यूज करते हैं, तो पैसा घूमता रहता है। उसी तरह बैंक को अपना पैसा भी तो घुमाना है ना, तो उसने 5 टूल बना दिए। एक एफडी बना दिया, एक आरडी बना दिया, क्रेडिट कार्ड बना दिया, एक फॉरेक्स कार्ड बना दिया, सेविंग्स अकाउंट बना दिया, करंट अकाउंट बना दिया। पैसा उसी के पास रहेगा, उसको अपना फ्लोट भी तो मेंटेन करना है। सो क्रेडिट कार्ड को अगर हम क्रेडिट कार्ड सिर्फ बिजनेस देखेंगे तो हम शायद ये कमेंट कर सकते हैं जो आपने बोला, लेकिन अगर हम इसे होलिस्टिक व्यू में देखेंगे कि बैंक का वो एक प्रोडक्ट है। इट इज लाइक मारुति का ऑल्टो भी है, मारुति का वैगनआर भी है, और मारुति का दूसरे भी गाड़ी है, अपना स्विफ्ट भी है। तो कोई कैश का होगा, कोई अपना थोड़ा बहुत करता होगा, तो उसी टाइप से है। यस अतुल सर प्लीज। तो इस पे क्रेडिट कार्ड पे मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्रेडिट कार्ड इसलिए यूज करना चाहिए ताकि आपका क्रेडिट हिस्ट्री बने। आप जैसे कि बताया रवि, बहुत सारे लोगों ने, कि आप क्रेडिट लो फिर उसको टाइम पे रिटर्न कर दो। नहीं करने के बहुत घाटे होते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैं अमेरिका आया 2002 में, और मुझे कोई आइडिया नहीं था क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री के बारे में, इंडिया में कभी यूज किया, इंडिया में किया लेकिन यहाँ क्रेडिट कार्ड सिस्टम मुझे पता नहीं था हिस्ट्री। तो हुआ क्या कि बहुत सारे आपके अपार्टमेंट में, आपके घर लेटर बॉक्स में बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, हम सबको आते होंगे आजकल तो पूरा मेल बॉक्स फिल भरा होता है क्रेडिट कार्ड ऑफर से, ये फ्री वो फ्री, और अल्टीमेटली 0 EMI, मतलब घर के लोन, क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स, और 0% इंटरेस्ट टाइप का ऑफर्स आते हैं। ये नहीं पता कि उनके जो लंबे सारे जो क्लॉजेस होते हैं नीचे में, छोटे छोटे टेक्स्ट में, कि इतना % इंटरेस्ट लगेगा अगर आप टाइम पे नहीं दोगे। वो उस समय 0% जस्ट फॉर इनिशियल डेज, बट अदरवाइज विल पे 19.99%, और बहुत ज्यादा होता है।
तो मुझे जब आया ऑफर्स क्रेडिट कार्ड तो मैंने ले लिया, मैंने क्रेडिट कार्ड का ऑफर आया मैंने ले लिया। बाद में मुझे आइडिया नहीं था कि उसके चलते आपकी हिस्ट्री खराब होती है। आपके ज्यादा क्रेडिट कार्ड होंगे तो भी आपकी हिस्ट्री, अगर आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो हर क्रेडिट का जो इंक्वायरी होता है ना, वो आपके क्रेडिट रेटिंग को थोड़ा उसमें पॉइंट्स घटाता है। तो इंडिया में मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, क्रिसिल का किसी का, तो वो क्रेडिट स्कोरिंग करते हैं। तो यहाँ के जो 3-4 जो बड़े बड़े जो रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट का जो एजेंसीज होते हैं, तो वो आपके फिक्का बहुत सारे स्कोर्स होते हैं, क्रेडिट स्कोर। तो हर इंसान का एक स्कोर होता है, जैसे कि कंपनीज का होता है रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड मूडीज एंड फिच, ये तीनों रेटिंग देते हैं कंपनी को। उससे कंपनीज को लोन लेने में या इक्विटी रेज करने में आसान होता है। बिना रेटिंग एजेंसी के रेटिंग के कोई बड़ा पैसा उठाया नहीं जा सकता मार्केट से। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो या बैंक्स हो, सबकी रेटिंग एजेंसी के रेटिंग के बाद ही उनको पैसा मिलता है मार्केट से। मैंने जो ये काम किया हुआ है जी कैपिटल में जब था, तो सारे रेटिंग एजेंसीज के साथ मेरा इंटरेक्शन था कि हम लोग 370 मिलियन कोई बड़ा अमाउंट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से इशू कर रहे थे, तो सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काम किया। बट रेटिंग एजेंसी जो बिजनेस के लिए होती है, सेम इवन इंडिविजुअल्स के लिए भी होती हैं। तो हर इंसान का हमारा जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहा है, हम स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या घर के लिए का जो भी लोन ले रहे हैं ना, तो उस लोन के साथ साथ हमारी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप कर रही है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है शॉर्ट में कि आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना के रखो और मॉनिटर करते रहो। क्रेडिट स्कोर होता है, तो एक बार जब बिगड़ जाता है ना, तो उसको सुधारने में 7 साल लगते हैं। यूएस में 7 साल, इंडिया में एग्जैक्टली कितना नहीं पता, लेकिन अगर एक बार आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो गई तो खराब हो गई। उसके बाद आपको हर लाइफ में आपको घर का लोन महंगा मिलेगा, कार का लोन महंगा मिलेगा। इवन आप कोई भी लोन लेना चाहोगे, क्रेडिट लेना चाहोगे, तो इट विल बी कॉस्टलियर। और जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है उनको बहुत सस्ता मिलेगा, कभी कभी फ्री में भी मिल जाएगा। और बहुत सारे क्रेडिट हिस्ट्री में वो पॉइंट्स भी होते हैं, बहुत अच्छा है। मास्टर कार्ड हो या वीजा, उनका जो पॉइंट्स भी बहुत अच्छा है, एक सिस्टम है, उसके थ्रू लोगों को बहुत सारे फ्री पर्क मिलता है। अमेरिकन एक्सप्रेस वन ऑफ द प्रीमियम कार्ड्स माना जाता है। तो एमएक्स का जो कार्ड होता है, बहुत सारे लोग उसको इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत सारे साथ में एडिशनल पर्क्स भी मिलते हैं कि आपको वो होटल आपको अच्छा मिल जाएगा, फ्लाइट में आपको अच्छी सीट मिल जाएगी, बहुत सारे पर्क्स होती हैं। तो क्रेडिट कार्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। आई नो कि इस मीटिंग में डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन क्रेडिट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझ लेना चाहूंगा कि जो भी इंसान है, चाहे एजुकेशन लोन ले रहा हो चाहे हाउसिंग लोन, क्रेडिट हिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान दें सब लोग। अपना क्रेडिट स्कोर मॉनिटर करें, मतलब पता भी नहीं होता है कि उनका क्रेडिट स्कोर है। यस नमन। तो मैं तो अभी ये फाइनेंशियल लिटरेसी भी में मतलब ये मैं अभी सीख रहा हूँ कि फाइनेंस और ये सब लाइक पर्सनल फाइनेंस और कैसे करते हैं। मैं अभी 18 का टर्न हूँ और मेरे को पापा ने क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया एफडी करा के, तो मेरे को सिखा रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे को ये पता है कि क्रेडिट स्कोर क्या है, सिबिल कैसे क्यों हम लोग करते हैं ताकि बेटर लोन्स मिले। तो मेरा एक क्वेश्चन आता है कि बहुत लेम में लगेगा आप लोग को, हाँ, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड कैसे सिलेक्ट किया जाए, कि कौन सा हम लोग पे सूट किया जाएगा, कि मतलब कि विच इज द बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर अस। कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड, क्या क्या चीज देखना चाहिए जो कि क्रेडिट कार्ड हम लोग को समझ में आए कि हाँ ये मेरे पे बहुत ज्यादा सूटेबल है क्रेडिट कार्ड, या वो बैंक मेरे पे बहुत ज्यादा सूटेबल। तो क्या क्या चीज देखना चाहिए? रवि, you want to have some answer for this? Yeah. Okay. So few prominent things. एक तो एज पर यूज ही क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ट्रैवलिंग है हर मंथ में या फिर ईयरली भी मेरा ट्रैवलिंग है, तो मैं ऐसा क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करूंगा जिसका 2-3,000 भले ही पूरे ईयर का कॉस्ट हो, पर एक डिसेंट अमाउंट मेरा लीवरेज मिले। अगर मुझे कैपेसिटी है कि 2 लाख 3 लाख आई कैन टेक अप, तो मुझे उतना तक के ही लिमिटेड क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए एक्सपोजर का। एक दूसरा, कॉस्ट कितना है पर ईयर का क्रेडिट कार्ड का। तीसरा, मेरे बेनिफिट्स जो वैल्यू एडेड बेनिफिट्स हैं वो मेरे रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहे कि नहीं। अगर मुझे मेरा ट्रैवलिंग नहीं है और मैंने एसबीआई का विस्टा कार्ड लिया है जहां पे 6 टाइम्स आपको लॉन्जेस फ्री मिलते हैं, लेकिन मेरा ईयर का ट्रैवलिंग ही नहीं है,
तो अननेसरी उस कार्ड के लिए 10,000 रुपीज पे करना विच इज नॉट एट ऑल गुड, तो वो प्रोडक्ट आपका मिसमैच होगा। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप देखो कि आप कितना एक्सपोजर बियर कर सकते हैं। एक क्रेडिट कार्ड का कॉस्ट कितना है पर ईयर, एक हर एक कार्ड का एक पर ईयर कॉस्ट रहता है, अराउंड 3,000 से स्टार्ट होता है कि 3,000 ईयर आपको पेमेंट करना पड़ेगा टू मेंटेन दैट कार्ड। और उसमें भी ये रहता है कि बहुत सारे वेवर्स रहते हैं। लेट्स से कि आपने उस कार्ड के ऊपर में इतना अमाउंट तक का ट्रांजेक्शन कर लिया ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो अमाउंट जो है आपका ईयरली वो वेव ऑफ हो जाएगा। तो वो चीज प्लस सबसे जो अभी फिलहाल इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वैल्यू एडेड सर्विसेज फोकस करके क्रेडिट कार्ड लीजिए। इससे अगर मेरा ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आई विल चूज अ क्रेडिट कार्ड ऑफ अ बैंक हु गिव्स मैक्सिमम डिस्काउंट्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जैसे सिटी बैंक है, सिटी बैंक का आप कभी भी ऑनलाइन में चाहे फ्लिपकार्ट हो अमेजोन हो आप परचेज कीजिए, सिटी बैंक का मोस्ट ऑफ द टाइम सिटी बैंक HDFC का 5% 10% डिस्काउंट रहता ही है। बाय यूजिंग द क्रेडिट कार्ड ऑफ HDFC और सिटी बैंक यू कैन हैव अ 10% डिस्काउंट। तो वो भी एक इमीडिएट बेनिफिट होता है क्रेडिट कार्ड। ये एक 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, हर एक क्रेडिट कार्ड का जो जब आप डिफॉल्ट करते हैं तो किस परसेंटेज पे चार्ज करता है, दैट परसेंटेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस डिफॉल्ट करने पे जो फाइन लगाता है वो फाइन क्या है। इन सम केसेस 750 रुपीज रहता है पर डिफॉल्ट, इन सम केसेस इट गोज टू 1250 पर केसेस। तो वो सारी माइन्यूट चीजें हैं जो फोकस करके एनालाइज करना चाहिए। These things will not be communicated by any sales guy who is selling the credit card. After getting it, go to the websites, read about the terms and conditions of the payments of credit card and talk to customer care. और मैं एक important चीज क्रेडिट कार्ड के बारे में बताता हूँ। If you default, अगर this is only अगर आपके पास एक लीवरेज है I can default for 5 months or 6 months, ठीक है, ज्यादा अमाउंट नहीं है, you can waive off all of your apart from your principal amount you can waive off all the charges. Let's say late fee charges you can waive off, और जो late fee charges पे भी taxes लगा है क्योंकि in credit cards every transactions will have a tax part into it, तो वो charges भी waive off करवा सकते हैं आप। सर मेरा तो थोड़ा अलग टाइप का क्रेडिट कार्ड है कि मेरा तो FD के बेसिस पे लिया गया है, लाइक डिपॉजिट जो है उसके बेसिस पे लिया गया है, मतलब जितना मैं डिपॉजिट है उसका 80% में लिमिट है, ठीक है। तो लाइक मैंने तो कभी अभी तक डिफॉल्ट ऐसे किया नहीं है, मतलब कि मैं ऑब्वियसली उसको ध्यान से यूज करता हूँ कि परचेजेस अगर करता हूँ तो सोच समझ के करना है कि मेरे पास कैपिटल है कि नहीं वो रीपेमेंट के लिए मेरे को। तो मेरा एक ये बात है कि सर FD का अगर डिफॉल्ट करते हैं तो उसका क्या है, मतलब कि मेरा तो FD के बेसिस में नहीं, that is you have not chosen, that is given to you. Okay, right, that is given to you, you have not chosen it, but there are products in the market in terms of credit card जहाँ पे आप choice करेंगे। Let's say not today, maybe down the line when you have your salary where you are looking for 2 lakh 3 lakh exposure or 6 lakh exposure, तो आप चूज करते हैं आउट ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो क्रेडिट कार्ड, आप चूज करते हैं कौन सा मुझे चूज करना है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग द क्रेडिट कार्ड। जस्ट कमेंट करना चाहूंगा नमन के पॉइंट पे कि एक क्रेडिट कार्ड होता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। तो जब मैं अपने बहुत गलतियों के बाद क्रेडिट कार्ड गलतियों के बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि कितना इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिट हिस्ट्री और क्या, तो फिर मुझे एडवाइस कंसल्ट किया लोगों से, तो बताया कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि मैंने बैंक पे मान लीजिए कि 2000 जमा किया तो मैं उतना ही का क्रेडिट केवल मुझे क्रेडिट मिलेगा। मैं अपना ही पैसा मैंने जमा किया हुआ बैंक में और अपने क्रेडिट कार्ड में ही सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लिया, $2000 का लिमिट, $2000 का लिमिट है, उस $2000 को उसमें कार्ड को यूज कर करके मैं क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करूंगा। फिर बाद में मुझे प्रमोट करके वो 2000 को 5000 बना देंगे, फिर 10000 बना देंगे। आपके रेटिंग जैसे जैसे आप यूसेज बढ़ेगा और आप रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट कार्ड यूजर बनोगे तो आपकी क्रेडिट लिमिट्स बढ़ाते जाएंगे। तो फॉर पीपल लाइक नमन, स्पेशली स्टूडेंट्स और जो यंग लोग हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस में भी, तो ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बननी स्टार्ट हो जाए और आपका बाद में जब आपको बड़ा अमाउंट चाहिए होगा तो यू कैन हैव दोज बिगर अमाउंट्स बिकॉज आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्टैब्लिश हो गई है। और वो सेम चाहे जो भी कार्ड हो, चाहे वो क्या कहते हैं
वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, अमेरिकन एक्सप्रेस हो, या सारे बैंक्स के कार्ड एसबीआई का, तो जिस बैंक के साथ आपको लगता है कि आपका ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है या होने वाला है, तो उस बैंक से या उस क्रेडिट कार्ड कंपनी से आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले लो, एंड दैट लॉन्ग रन में बहुत फायदा होगा उससे। आई थिंक मेरा भी सिक्योर्ड क्रेडिट Yeah, कार्ड ही तुम्हारा है। secured है. It's मेरा against FD secured also है। secured. FD है तो Yes, हाँ, Karthik, please. yeah. Karthikeya, you wanted to say something? Yeah, so Yeah. even I have a question. करीब 10 साल पहले की बात है. I remember I was flying down to Bangalore and मेरे साथ में ही एक he was some senior person from finance field. तो क्रेडिट कार्ड को लेकर के ही suggested something to me. उन्होंने एक चीज बोली थी कि इसको कभी भी कहीं छोटी परचेज में काम में नहीं लेना चाहिए. So I would really like to ask how true is that? I mean, I know पिछले 10 सालों में things might have changed a lot, but बेसिकली आज के टाइम में छोटी छोटी परचेजेस भी क्रेडिट कार्ड से करना ठीक है या नहीं? I think Ravi can add. छोटी छोटी परचेजेस को लोग क्रेडिट कार्ड से इसलिए करते हैं, इट्स वेरी मच लाइक पेटीएम, कि वो चिल्लर कैरी नहीं करना पड़ता है, एक कार्ड कैरी करो, हर जगह स्वाइप स्वाइप खेल लो. यस रवि, आप you want to add something? See, credit card, that is what in the beginning I mentioned, it's all about maintaining your monthly cash flow. Till the time you are able to maintaining that time frame, you can use it, otherwise you can avoid. Right now अभी आप सोचो कि banks itself they are giving this one interest free loans to 3 months or 6 months on small purchases on online tickets पे आ रहे हैं. So that is also a benefit as a user कि आप यूज कर रहे हैं लोन फ्री इंटरेस्ट फ्री पेमेंट. 3 months का ऑलरेडी लिवरेज मिल जा रहा है या 6 months का ऑलरेडी लिवरेज मिल जा रहा है. Correct. So it doesn't matter. I mean, based on my understanding, छोटी परचेस करो, बड़ी परचेस करो, but you just need to be disciplined. डिफॉल्ट नहीं करना है. मैं डिफॉल्ट के वेरियस लेवल है, मिनिमम पेमेंट एटलीस्ट देना है. क्रेडिट कार्ड के बारे में एक छोटा सा एनालॉजी मैं मतलब गांव के तरफ से बोलूंगा कि जनरली गांव में ये चीज होता था पहले, अभी तो चेंज हो गया है कि अगर 3 किलोमीटर का मुझे डिस्टेंस जाना है और 3 किलोमीटर के लिए मुझे अगर 5 रुपया या 10 रुपया का ऑटो फेयर है, तो व्हाट जनरली पीपल विद द मेंटालिटी डू कि ठीक है 3 किलोमीटर आई कैन वॉक रादर देन पेइंग 5 रुपीज और 10 रुपीज. लेकिन द पॉइंट इज कि उसके पास वो टाइम फ्रेम जो है दैट इज इमेटेरियल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन द मोमेंट अ पर्सन हु केम इन एंड जिसके पास टाइम फ्रेम का कंस्टेंट है, he will not be thinking of this 5 rupees or 10 rupees of auto fare, but he will see कि within 5 minutes I will travel this 3 kilometer distance. It is same in terms of this all this credit card especially कि आप पे डिपेंड करता है कि आपका वो लिवरेज. अगर मुझे 1000 रुपीज का मैं सामान खरीद रहा हूँ और उस पर मुझे 2 रुपीज या 5 रुपीज या 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है इफ आई एम स्वाइपिंग क्रेडिट कार्ड, और वो 10 रुपीज इट्स ओके फॉर यू, सो यू कैन स्वाइप. अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि वो 10 रुपीज नहीं मैं ज्यादा क्यों पे करूँ, तो और यू हैव अ फंड टू टेक केयर ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रेम, तो आप नहीं यूज कर सकते. सो इट इज वेरी मच इन द टाइम फ्रेम ऑफ दैट मंथली कैश फ्लो यू वांट टू मेंटेन. अच्छा, एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ विथ दिस ओनली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल. सी लेट्स से अ सिनेरियो व्हेन यू आर रनिंग अ कंपनी एंड यू हैव अ वेंडर वेयर यू मेक द प्रोक्योरमेंट. Okay, there are few procurements which are done with advance amount. Today you have to pay the amounts and your product will be coming either maybe in 15 days time, or there are few product cycles which has a lead time of 3 weeks or 4 weeks. लेकिन उसके लिए you pay to the company in advance few amount, let's say 30% or 40% basis on your terms and conditions. So वो अगर आप उसको नेफ्ट करते हैं आज के आज एंड योर मटेरियल इज गोइंग टू बी ऑन योर साइट आफ्टर 3 weeks और 4 weeks, तो जो आपने अमाउंट वो पे किया है, लेट्स से अगर 4 लाख का प्रोडक्ट है, आपने 1 लाख एडवांस में पे किया है या फिर 70,000 भी पे किया है, तो इट इज डायरेक्टली गोइंग टू ट्रांजेक्शन इज रिफ्लेक्टिंग इनटू द पर्सनल अकाउंट वन. एट द सेम टाइम आपके अकाउंट में भी वो उस मंथ में एक्सपेंसेस आ रहा है. वेयर एज व्हाट यू कैन डू, you can swipe a credit card to the in front of person's account, उसके अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट करेगा और आप में कोई बर्डन नहीं आ रहा है. आप ऑलरेडी 3 weeks का एक माइलेज मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द क्रेडिट कार्ड की, ठीक है, जब मटेरियल मेरा आएगा एट दैट टाइम आई विल इंस्टॉल एंड आई विल गेट द मनी आल्सो फ्रॉम माय क्लाइंट, और मुझे उसके लिए जो एडवांस अमाउंट का बर्डन आ रहा था दैट आई कैन लिवरेज फॉर दैट टाइम पीरियड.
So we are running out of time. The last actually Karthik, I actually thought about your question. मैं बता रहा हूँ कि क्यों बोला होगा उन्होंने कि छोटे परचेज नहीं करना चाहिए. एक्चुअली होता क्या था या अभी भी होता होगा आई गेस, किसी छोटे छोटे दुकान पे ना अगर क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो दे विल चार्ज यू एडिशनल 2-3%. ठीक है, वहां पे आई गेस उन्होंने बोला होगा कि जहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा चार्ज करे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए, डोंट डू दैट. एंड यूजुअली छोटे परचेजेस में ये होता है. नाउ इफ यू गो टू सुपर मार्केट, वहां पे आप कैश दो, अगर 1000 रुपए का बिल है तो 1000 रुपये लेगा, कार्ड दो तब भी 1000 ही लेगा वो. ठीक है, तो उनको भले ही वो 2% 3% देना पड़ता है क्रेडिट कार्ड को, बट दे चार्ज द सेम जस्ट टू कीप स्टैंडर्ड रेट. Yes, Ravi, you can add some last comment. In the last बड़े प्लेयर okay. सब लोग आ गए. Okay. चलिए 5 मिनट बात कर लेते हैं. Yes, Ravi then Karthik then Saurabh. नहीं, मेरा लास्ट पॉइंट था किसी क्रेडिट कार्ड, हाउ दिस इवन द क्रेडिट कार्ड redemptions or the collection itself become a business in India, right? You might heard of a company known as Cred. Correct. It is from Delhi. Kunal Shah. हाँ, Kunal Shah. So they are running a company basis on the only collections. See, imagine how beautiful this business is. Yes, Karthik, please. हाँ नहीं, I mean I was agreeing with you only. तो I remember मैंने इसलिए I already told ना कि 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं. So things might have changed a lot in this. बट अभी तो सुपरमार्केट वगैरह आ गया है ना, तो आई गेस अब तो लोग सुपरमार्केट ही चले जाते हैं, एक साथ ही उठा के लाते हैं. हाँ, and I believe even per person भी अब आज की डेट में अपने परचेज से मैं अगर 10 साल में अपने घर को evaluate करूँ, so the kind of grocery store में the kind of purchase which we used to do was very minimal. But अभी वही होता है कि हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते का सामान एक साथ ले आओ, तो हो सकता है कि वहाँ पे भी यूज करना. You add a point basically. That's what I wanted to say. ऑनलाइन पेमेंट भी होता है ना आजकल बहुत. It's all done through credit card, debit card. Yes, Saurabh, please. Last comments. मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े जैसे सुपरमार्केट्स का एग्जांपल दिया कि वो लोग चार्ज नहीं करते हैं, उसका एक रीजन भी क्योंकि सुपरमार्केट्स लोग को बहुत ज्यादा कंसेशन रेट्स पे मशीन मिल जाता है. फॉर एग्जांपल रेंटल्स देना ही नहीं पड़ता होगा, फिर एक छोटे किराना की दुकान में वो 400 500 600 रुपए, पाइन लैब्स का 600 650 का रेट है, लेकिन मेरे लिए कुछ और है बिकॉज आई हैव सो मेनी स्टोर्स. इसी तरह एम स्वाइप की बात करें, एम स्वाइप का रेट दूसरे के लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा. तो इफ आई टॉक अबाउट सुपरमार्केट, जो बिग बाजार जो डेली कितने लाखों का बिजनेस कर रहा है, उसके लिए तो रेंट ही 0 होगा, और उसका जो बाकी सबका एमडीआर 2-2.5% होता है, उनका 0.5% होगा. तो बस ये एक पॉइंट था. तो इसीलिए वो कुछ चार्ज नहीं करते हैं बड़े प्लेयर्स. कंज्यूमर के पॉइंट्स से लॉस हो जाता है एज ए लेवल जो उसको खरीद रहा है. बट क्यों लॉस है? कंज्यूमर के पॉइंट से क्यों लॉस है? कंज्यूमर एज इन नॉट द एंड यूजर, मोर लाइक इफ आई एम बाइंग द मशीन और मेरे को ये बोल रहा है कि आपका ट्रांजैक्शन कम है तो आपसे मैं ज्यादा लूंगा, बट एक्चुअली दया करके उसको मेरे से कम लेना चाहिए, राइट? मैंने किसी को बोला था ये मेरा कुछ धंधा चल रहा नहीं है. विशाल, वो मशीन का कॉस्ट 2500 है, वो 2500 कैसे रिकवर करेगा? आप तो उसे बिजनेस ही नहीं दे रहे हो. नहीं, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के लिए बोल रहा था मैं, ये मशीन के लिए नहीं. बट गेटवे में भी 2-3% ले लेते हैं, तो मैं उनको ये बोला कि मेरा कुछ हो रहा नहीं ट्रांजैक्शन और आप मेरे से इतना क्यों ले रहे हो, जिससे का ज्यादा हो रहा है. पेमेंट गेटवे का मैं मास्टर हूं, तो कभी पेमेंट्स का आप एक अलग से सेशन ले लेना. हाँ, दैट इज व्हाट पॉइंट की पेमेंट गेटवे का अलग ही बिजनेस है, वो भी एक अलग 1 घंटा का टॉपिक बात कर लेते हैं. थोड़ा सा हाउसिंग लोन पे भी बात करना है, पेमेंट गेटवे पे भी देख लेते हैं, और भी जो भी बचेगा. ठीक है, कल खत्म हो जाएगा. एक ये भी मॉडल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो क्रेड चल रहा है ना, दैट इज आल्सो अ ब्यूटीफुल मॉडल राइट नाउ. वी कैन ऐड क्रेड टुमारो. चलिए, ओके, गुड नाइट. बाय. गुड नाइट एवरीवन.